दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। हुआ सिख खसम दी नूर असो कुसों टटिया। खुद दिखे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जण सच्चा पातशाह सिरसां दा साहू। जिस पास बैठिया सोहीआ सबना दा वेसाहू। सज्जण सच्चा पातशाह सिरसां दा साहू। जिस पास बैठिया सोहीआ सबना दा वेसाहू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसादे। बहु परपंचकार पार थान लियावै। सुत दारा पह आन लुटावै। बहु परपंचकार पार थान लियावै। सुत दारा पह आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट ना कीजै। अंत नवेरा फिर जी पहली जा। रहाओ छेन छेन तान छीजै जरा जनावै। ताब तेरी ओक कोई पानियों ना पावै। कहेत कबीर कोई नहीं तेरा। हृदय राम की ना जपह सवेरा। कहेत कबीर कोई नहीं तेरा। हृदय राम की ना जपह सवेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके। राम दामोदर माधवे। सन्मानयोग गुरु साध संगत जीओ, सनेमर फतेह प्रवान करने
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਸ਼ੰਖਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ, ਸਦਣਾ ਸੈਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਰਤਨ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਬੰਦ ਸਹੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਰਤਨ ਲੱਭੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਅਛੂਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਰਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।
मनुख दी होंद परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसी बनाई है, इसदा अद्धा जीवन बाहर है, अद्धा अंदर है। इसनूं मैं थोड़ा दोहरा के फिर शब्द दे भाव ते अक्षरां नूं लवांगे। बाहर पवन है, जीवन दे च भी पवन है, शरीर दे च। बाहर पवन ना चले सारा संसार मुर्दा हो जाएगा, पर मेरे अंदर पवन ना चले मैं मुर्दा हो जावांगा, संसार ते चलता रहेगा। जे बाहर पवन चलती पई है तो मेरे अंदर भी चलनी चाहिए। बाहर चलती हुई पवन बंद हो जाए है ही नहीं, सारा संसार मृत हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। पर मेरे अंदर श्वास नहीं चलते, पवन नहीं चलती तो मैं मुर्दा हो जाना। मुर्दम ही है अगर पवन ना चले, मुर्दापन है अगर पवन ना चले। पानी बाहर सागर दे च है, दरियावां दे च है, जमीन दे थल्ले है, ऊपर बदल भी बरसते ने। ठीक है सब कुछ है, पर मेरे इस जीवन सागर दे च भी पानी होना चाहिए। मेरे इस जिंदगी दे सरोवर दे च भी पानी होना चाहिए। सागर सुक जाए, दरिया सुक जान, जमीन दे थल्लों पानी ना मिले, उपरों बदल ना बरसन, ते सागर सारा सुक जाए, जमीन दा सारा जीवन सुक जाएगा, खत्म। सिर्फ सागर ही नहीं सुकया, सारे ही सुक गए। पशु पक्षी वनस्पति मनुख। तो निरा सागर दे च ही पानी नहीं चाहिए, मेरे जीवन दे च भी चाहिए। निरा दरियावां दे च पानी दा बहाव ना होवे, मेरे शरीर दे च भी होवे। निरे बदल ही ना बरसदे रहन, मेरे जीवन दे च भी इसदी बरखा होवे। इसे तरीके नाल असीं देखदे हां, बाहर सूरज बुझ जाए सारा जीवन बुझ जाएगा। पंछी बुझ जाणगे, पशु बुझ जाणगे, वनस्पति बुझ जाएगी, मनुख भी बुझ जाएगा। ये दो दीवे अखां बुझ जाणगियां। अगर बाहरों सूरज बुझ गया सारा जीवन बुझ जाएगा। बाहर सूरज बुझ जाए अंधेरा हो जाएगा, सारा जीवन अंधकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है इतना विशाल सूरज बाहर चाहिए है, पर ओदी अंश मेरे शरीर दे च भी चाहिए। बाहर सूरज ठंडा पै जाए तो ब्रह्मंड ठंडा पै जाएगा। अंदर जठर अग्नि ठंडी पै गई तो मैं ठंडा हो जावांगा, खत्म। पता है मुर्दे की पहचान की होती है? कहते हाथ पैर ठंडे हो गए ते ठंडा हो गया। सूरज ठंडा हो गया तो ब्रह्मंड मुर्दा हो जाएगा। और मेरे अंदर जठर अग्नि ठंडी हो गई तो फिर मैं ठंडा हो जाऊं। बाहर अगन है अंदर अगन है, बाहर पवन है अंदर पवन है, बाहर पानी है अंदर पानी है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, जिंदगी बाहर है जिंदगी अंदर है। जीवन बाहर है जीवन अंदर है। अंदर दा जीवन ना प्राप्त होवे
तो मनुख अंदरों मुर्दा हो जाता है। किसे नूं मुर्दापन कहे? मेरे पातशाह ने आखां जीवा बिसरे मर जाऊं, मरणं बिसरं गोबिंदे, जीवनं हर नाम ध्यावण। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोय। अंदर प्रभु दा चिंतन नहीं तो फिर मैं अंदरों दुखी हो जावांगा। बाहर दा सारा जीवन पदार्थां दा है ते पदार्थ सारे दा सारा धन आश्रित है। एक एक विचार नूं बड़े गहराई नाल सुनना। अंदर दे सारे दैवी गुण रस ते आनंद परमात्मा आश्रित ने। बाहर दे सारे पदार्थ, मैनू चंगा मकान चाहिए, धन तो बिना ते नहीं लभेगा। मैनू चंगे कपड़े पहनण नू चाहिए ने, पैसिਆਂ तो बिना ते नहीं लभदे। मैनू दूर दराज की मुसाफरत तय करने वास्ते साइकिल मोटरसाइकिल कार चाहिए, पैसिਆਂ तो बिना ते नहीं लभणे, धन तो बिना ते नहीं लभणे। फिर मैनू इस तन की भुख मिटाण वास्ते भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, साग सब्जी चाहिए, घ्यो चाहिए, दाल चाहिए, धन तो बिना ते नहीं लभना। संसार की कोई चीज धन तो बिना नहीं लभदी, नहीं लभदी। या मैनू कहण देना बाहर दा भगवान धन है, अंदर दा भगवान धर्म है। बाहरों सारा जीवन मुर्दा हो जाएगा अगर धन नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हिंदू वीरां ने तो एक मिथ बनाई हुई है, लक्ष्मी नारायण। गजब दी गल, लक्ष्मी नूं पहले रखे है, नारायण नूं बाद विच। बाहर दा जीवन पहले, इनू पहले पहल दी हुई है। क्यों? कबीर भी पहल देंदे ने, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे। हे प्रभु, भक्ति तेरी तां होवेगी पहले भोजन, पहले भोजन, पहले पेट दे भोजन, पहले लक्ष्मी। इंज कह लो, लक्ष्मी ही भोजन है, लक्ष्मी ही कपड़े ने, लक्ष्मी ही मकान है, लक्ष्मी ही पदार्थ है, लक्ष्मी ही सारा साजो समान है। लक्ष्मी लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण। अंदर दा सारा आनंद नारायण तो बिना नहीं होवेगा। बाहर दी सारी उपलब्धि ते सुख लक्ष्मी तो बिना नहीं होणगे। नारायण दे नाल ही लक्ष्मी नूं खड़ा कर देता है। कई मूर्खा ने तो इंज किया, नारायण नूं हटा ही दिता है, लक्ष्मी लक्ष्मी रख ली है। ऐ ठीक है। दुकाना ते देखे मैं कईयां दे, लक्ष्मी है, नारायण हटा दिता है। कईयां दे घरां च भी देखी, धनाढ़ां दे घरां च हद हो गई, नारायण कोई नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी। ये सिर्फ प्रत्यक्ष रूप दे दिखावे दे रूप च हटाया नहीं, ये अंदरों भी लक्ष्मी दे पुजारी ने, नारायण दे पुजारी नहीं। नारायण दा पुजारी तो कोई करोड़ां च एक होवेगा, सब लक्ष्मी पूजक ने, सब लक्ष्मी दे पुजारी ने। हुण ध्यान नाल सुनना, बाहर मुखी मनुख जिन्हें अजे अंदर झात नहीं मारी, लक्ष्मी दा पुजारी है, नारायण दा पुजारी नहीं है, लक्ष्मी पूजक है। निंदा नहीं है लक्ष्मी की, नारायण दे नाल है। प्रभु ने ऐसा सिलसिला बनाया है।
लेकिन मैं अर्ज करा, लक्ष्मी सिर्फ बाहर दियां लोड़ां दी पूर्ति करदी है, अंदर दी नहीं। ते पता है हुण मैनू बाहर नौजवान की कहंदे ने, इस देश दे विच भी विचरदे आ, कहंदे ने ज्ञान जी बस सानू बाहर दा ही जीवन चाहिदा, अंदर दी गल छड्डो छड्डो, की लेना अंदर तो। चंगा मकान होना चाहिए, चंगे कपड़े होने चाहिए, चंगा खान पान होना चाहिए, चंगा रहन सहन होना चाहिए, सोसाइटी च नाम बनता है, बाकी की करना है। जैसे जैसे बाहर मुखी जिंदगी दे बहुत रौनक होंदी जा रही है, वैसे वैसे धार्मिक मंदिर उजड़ते जा रहे हैं, उजड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बाहर मुखी जिंदगी च बहुत रौनक होंदी जा रही है, वैसे वैसे मंदिर बेरौनक हो रहे हैं। बेशतर गुरुद्वारियां च इतवार वाले दिन 4 बंदे आंदे ने, वो भी 10-11 बजे आसा दीवार लगती, अमृत वेले कोई नहीं। धन कमाण वास्ते मनुख दे कोल हर तरह का समा है। जे रात की ड्यूटी है तो राती भी देनी है, कि जे अमृत वेले धन का लाभ हो सकता है तो अमृत वेले भी उठना है, उठते ने, ड्यूटी अमृत वेले की है। सारे डेयरियां वाले, सारे जो दुध सप्लाई करते हैं, ये 3 बजे उठते हैं, ताकि 5 बजे 6 बजे तक दुध सप्लाई कर सकन। बाहर देशां दे ते सारी रात बोतलां दुध दियां भरदे ने, फिर अमृत वेले सप्लाई करदे ने। धन कमाना है, सारी रात जागया जा सकता है, अमृत वेले भी जागया जा सकता है, सारा दिन भी मेहनत की जा सकती है। धर्म कमाना है तो अमृत वेले दे 2 घंटे भी कोई नहीं है, समय का दसवंध भी कोई नहीं है। जैसे जैसे मनुख ने इसे ते जोर देता है बाहर दे जीवन ते, वैसे वैसे लक्ष्मी भगवान बन गई है, ते नारायण बेमैनी हो गए, उते हटा दिता गया। मैं अक्सर अर्ज करदा हूं, देश का सब तो वड्डा त्योहार है दिवाली। हिंदू मनांदे, जैनी मनांदे, बोधी मनांदे, सिख मनांदे। इक्को एक त्योहार है जो ये चारे मुखी धर्म जो इस देश दे ने मनांदे ने। हिंदू मनांदे ने, जैन मनांदे ने, बौद्ध मनांदे ने, सिख मनांदे ने। खुशकिस्मती उस दिहाड़े नाल चारां दा धार्मिक संबंध जुड़िया होया है। चारियां दा कुछ ना कुछ इतिहास है उस नाल। दिवाली इतनी महान हो गई, गरीब तो गरीब मनुख भी दीवे जलांदा है, घर नूं सजांदा है, साफ सुथरा करदा है। पर दिवाली वाले दिन 80% इस देश की आबादी सब तो वड्डा धर्म लक्ष्मी पूजन करदा है, नारायण की पूजा नहीं करता। लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। नास्तिक तो नास्तिक मनुख भी धन की पूजा नहीं करता, धन की वरतों करता है। धन की पूजा, लक्ष्मी की पूजा। चांदी के रुपए रखे जाणगे दुध नाल धो के, फिर उन्हां दे अगों पाठ किया जाएगा, रुपया नूं पाठ सुनाया जाएगा, फिर मत्था टेकणगे, फिर केसर दा तिलक भी लाणगे, फिर फुल भी रखणगे। रुपए पूजे जांदे ने, उस दिन पैसा पूजा जांदा है, धन पूजा जांदा है। उहदा मुख कारण है बाहर दा सारा जीवन धन आश्रित है, धन भगवान है।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੱਕ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਅਸਮਤ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। इतना महान हो गया धन, बेचनी है असमत, बेचनी है कला, बेचना है ज्ञान, बेचना है दिमाग, बेचना है जिस्म, बेचना है धर्म, बेचना है पाठ, बेचना है कीर्तन, बेचनी है कथा। कहने देना मैनू, चलो आ गई ये गल। कीते किताए पाठ मिलते हैं, पैसे दो पाठ हो गया, अरदास कर देंगे। जपे जपाए पाठ मिलते हैं, बिकदा है पाठ, बिकदा है कीर्तन, बिकदी है कथा, बिकदी है पूजा, बिकदी है कौम, बिकदा है धर्म, बिकदा है ज्ञान, बिकदी है कला, बिकदा है दिमाग, बिकदा है जिस्म। कोई धन देण वाला होवे जितना सानू मुल चाहिए, असी बेचण नूं तैयार। बेच देंगे कौम नूं भी, बेच देंगे देश नूं भी। जय चंद ने इस देश नूं बेच ही दिता सी, गौरी नूं लिआया सी काबल तो। कितने लोगों ने इस देश नूं बेचे होना है अज तक, कितने मनुखा ने कौमां नूं बेचे होना है कौम नूं, कितने अपनी अड़क बेचते हैं, अपने खुददारी बेचते हैं। कितने अपना धर्म ईमान बेचते हैं, कर्म बेचते हैं, पूजा बेचते हैं, पाठ बेचते हैं। इस कथा का मैं थोड़े कोलों मुल मंग लवां, ये बिकाऊ है, ये वस्तु है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच केवल बेटा सी, नजराना सी। 90% हुण नजराने नहीं, बेटा नहीं, मोल तौल। शर्म आ जाती है जब मैनू कई दफा फोना आउंदियां ने, ज्ञानी जी फलाने पिंड समागम है, तो मैं अपनी डायरी देखना, ठीक टाइम होंदा तो मैं हाँ कर देना, पर कहते पहले ये दसो मोख की होवेगा, मुल की होवेगा। शर्म नाल सिर झुक जाता है मेरा। उन्होंने मैं कहना हुंदा, ये ते बेटा आउंदी है, मुल ते नहीं आउंदा, कीमत ते नहीं आउंदी। अगर परमात्मा की कथा की भी कीमत हो सकती है तो वो परमात्मा की कथा नहीं होगी, किसी मनुख की कथा होगी, किसी पदार्थ की कथा होगी, परमात्मा की नहीं होगी। अगर परमात्मा का भी कीर्तन बिक सकता है, हैरानगी आती है। बिकाऊ है कीर्तन, बिकाऊ है कथा, बिकाऊ ने पाठ पूजा। अणक मुल ढंग दा मिल जाए तो वेचण की समर्था कोल होवे हथ च, देश नूं भी बेच देना है, अणक नूं भी बेच देना है, कौम नूं भी बेच देना है। वैश्या बाजार विच अपनी असमत भी बेचती है, इज्जत भी बेचती है, तन भी बेचती है। बिकाऊ है माल, बशर्ते धन मिलना चाहिए। हैरान होया एक जगह में, आनंद कारज सी ते शिक्षा लई मैनू बुलाया। मैं कहा हुण मेरी आत्मा इत्थे नहीं मनदी कि गुरमत दी शिक्षा दीक्षा दें। ये 27 साल दी बच्ची, वो 62 साल दा बंदा लाड़ा बन के आया, देखिया कि और वो 62 साल दा करोड़ां पति अरबां पति, पैसा देखे
मैं कहे तो खरीदो फरोख्त हो रही है, ब्याह थोड़ी हो रहे हैं, ये ब्याह नहीं है। सारे चूंकि चोटी दे धनाड़ सन, इन्ने अरबांपति नाल सारे धनाड़ आने सन 15-20 बंदे। वो आपस विच गल करन लगे, मुंह फट गैनी नूं काहनूं ले आए तुसीं, और थोड़े गैनी ने शिक्षा देने वास्ते पढ़ा लो। एक कनेडा दी मैं थानू गल दसदा पिया, मैं वापस आ गया सी, मैं कहा नहीं यह शिक्षा मैं नहीं देनी, गुरमत दी शिक्षा दीक्षा इस ते लागू नहीं होती। तो बोलते रहे, एक मुंह फट गया नहीं आया सी, रस्म दी पूर्ति नहीं करता सी। 62 साल दा लाड़ा, 27 साल दी बच्ची, और बच्ची खुशी नाल, जबरदस्ती नहीं सी मां बाप दी, उन्हें भी धन देखिया, महल देखे, 30-35 घर विच खड़ियां कारां देखियां, जमीनों जायदाद देखी, शानो शौकत देखी। मनुख अपना जिस्म बेच सकता है, ईमान बेच सकता है, धर्म बेच सकता है, कौम बेच सकता है, देश बेच सकता है। बाहर ते धन भगवान है, ते धन नूं सब कुछ अर्पण हो सकता है, इज्जत भी, मान मर्यादा भी, कौम भी ते देश भी, असमत भी। हुण दूसरा मैं अर्ज करा, धन बेईमानी नाल भी लभ सकता है। इसे ही शब्द विच कबीर ने जिक्र किया, धन ठगियां नाल भी लभ सकता है, धन चलाकियां नाल भी लभ सकता है, धन पाप नाल भी लभ सकता है। पापां बाजों होवे ना, ये तो होंदी नहीं, बहुता ही चाहिए तो फिर बहुते पाप ते करने पैणगे, अनर्थ ते करना पैगा। धन पाप नाल भी मिल सकता है, झूठ नाल भी मिल सकता है, फरेब नाल भी मिल सकता है, धक्केशाही नाल भी मिल सकता है, जबर नाल भी मिल सकता है, लुट के भी मिल सकता है, खो के भी मिल सकता है, चोरी नाल भी मिल सकता है। धर्म ना खो के मिलेगा, ना लुट के मिलेगा, ना चोरी नाल मिलेगा, ना ठगी नाल मिलेगा। इस तो सारे विपरीत अपनी मानसिक दशा बनानी होगी। धन औगुणा करके भी मिल सकता है, धर्म औगुणा करके नहीं मिलेगा। धन पाप करके भी मिल सकता है, धर्म पाप करके नहीं मिलेगा। धन चोरी करके भी मिल सकता है, धर्म नहीं चुरा सकते। अगर किसी नूं धर्म की प्राप्ति हो जाए, यकीन जानो उसनों भी कोई चोर नहीं चुरा सकता। जल नहीं डूबे कस कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। बाहर मेरे कोल चाहे कितना धन क्यों ना होवे, खतरा ते है बाहर। किधरे हड़ आ सकते ने ते मेरी पक्की फसल बर्बाद हो सकती है। मेरा उच्चा सोना महल मकान ढेरी हो सकता है। किधरे गड़े पै सकते ने, पक्की फसल बर्बाद हो सकती है। किधरे कारोबार व्यापार विच दिवालिया हो सकता है, किधरे कोई चुरा सकता है, किधरे कोई अग लग सकती है। बाहर ते सैकड़े खतरे ने, बड़े खतरे ने। पर जिसनों धर्म की दौलत प्राप्त हो जाती है, पहला एक ते चोरी का कोई खतरा नहीं। चोर दे हाथी उत्थे तक नहीं पहुंचते। क्यों? इस धन नूं चुराया ही नहीं जा सकता। दूसरा, इस धन नूं अग भी नहीं साड़ सकती। तीसरा, इस धन दे उत्ते हुकूमत टैक्स भी नहीं ला सकती किसी प्रकार का भी। बाहर धन वधेगा तो टैक्स भी वधेगा, इससे कर भी नहीं लगेगा। गुणा दी दौलत वधदी जा रही है, पर कर मुक्त कोई कर नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन ये धर्म एक दौलत है, आनंद है, खेड़ा है।
कि उस मनुख ਨੂੰ पता ही नहीं चल सकता जिहदा सब कुछ बाहर ही है। बाहर मुखी मनुख धन का पुजारी आउंदा है, अंतरमुखी मनुख धर्म का पुजारी आउंदा है। बाहर मुखी मनुख धर्म का त्यागी आउंदा है, धन का पुजारी आउंदा है। अंतरमुखी मनुख धर्म का पुजारी आउंदा है, धन माया उदी सेवा करती है, दासी आउंदी है। माया दासी भगतां की कार कमावे। बाहर मुखी जिहड़ा मनुख है, चूंकि उसका मालिक भगवान ही धन है, धन है, लेकिन ये कहता है मैं धन का मालिक हाँ, मैं मकान का मालिक हाँ। कबीर कहते ऐसी गल नहीं है। अगर धन चला जाए तो मनुख रोंदा है, मनुख किधरे चला जाए खत्म हो जाए धन नहीं रोंदा, मकान नहीं रोंदा, महल माड़ियां नहीं रोंदियां। कबीर ने तो साफ कह दिता है, खसम मरे तो नार ना रोवे। कसम भाई मैं मकान का मालिक हाँ, मैं इस धन संपदा का मालिक हाँ, मैं इस जमीन जायदाद का मालिक हाँ, मैं इस वस्तु का मालिक हाँ, खसम हाँ। पर कबीर कहते खसम मरे ये मालिक मर जाए नार ना रोवे। ना मकान रोंदा है, ना जमीन रोंदी है, ना धन रोंदा है, नहीं रोंदा। क्यों? उस रखवारो औरो होवे, उन्होंने सांभण वाला फौरन दूजा हो जाता है, पुत्र हो जाता है, पोतरा हो जाता है, पड़पोतरा हो जाता है, भरा हो जाता है, भैणा हो जांदियां ने, नहीं कोई है तो गौरमेंट हो जाती है। ये जमीन खाली नहीं रहेगी, किसी न किसी का कब्जा हो जाएगा। ये मकान निखसमा नहीं रहेगा, कोई ना कोई खसम हो जाएगा। एक खसम मरे दूजा, तीजा, चौथा। खसम मरे तो नार ना रोवे। कबीर खूब खोल देने इस गल नूं। मैं हुणे ही अर्ज की है, कबीर दे नाल इत्थे विचार दी नवीं शैली दा जन्म होया। कबीर दे नाल ही भगती दी लहर दा जन्म होया। खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो और ही होरे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक इया भोग बिलास। चोटी दे साइंटिस्ट, लॉयर, दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक सब धन तो प्रभावित ने, धर्म तो नहीं। ये भी मैं अर्ज करा। संत भी वो वड्डा मनिया जाता जिहदियां बिल्डिंगां वड्डियां ने। 2-4 डेरियां च मैं गया सी, हुण कुछ डेरेदार संकोच करन लग पए ने ते उस तरह की गल नहीं करते। एक डेरे जद मैं पहली दफा गया तो लै गए बड़े मान सन्मान नाल। पहले मैनू कमरे दिखाण लगे, ये सारे एयर कंडीशन ने। फिर आख्या गया नहीं जी, असी पेट्रोल पंप अंदर अपना बनाया है। 15 बसा ने, 35 कारां ने। कौन रोज रोज बाल पेट्रोल लेने जाए? अंदर बनाया। जो साजो समान मैनू दिखाया, मैनू कहने लगे किस तरह लगे डेरा। मैं एक धनवान का घर है, बड़ा चंगा है। एक धनाढ़ मनुख का अस्थान है, बड़ा चंगा है। नक वट लियो ना सारिया ने। कहंदा सी ते सुनिया सी तुसी मूंह फटो, वाकई मूंह फटो, मूंह ते ही कह दिता। ये संतां दा डेरा है, महापुरुषां दा डेरा है, तुसी धनाढ़ दा घर कह रहे हो। मैं कहा संतां दा घर है तो कोई समाधि लीन पुरुष दे दर्शन कराने सन, कोई भजन दी गल करनी सी,
कोई समाधि की गल करनी सी, कोई रब्बी गुण मैनू दिखाने सन। जिथे बैठ के लोकी साधना करते उन कोई वही गल करनी सी। तुसी मैनू कारां दिखाइयां, पेट्रोल पंप दिखाया, एयर कंडीशन कमरे दिखाए ने, ये तो सब कुछ धनाड़ दियां निशानियां ने। ते मैं ऐलानिया कहना एक धनवान दा डेरा है, संत दा डेरा नहीं है। नहीं, एक धनवान दा घर है, संत दा घर नहीं है। बाहर दी सारी महिमा धन ते खड़ी है, ते धन दी निंदा नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, अगर असी बाहर दे पानी दी निंदा की थी तो अंदर दा भी नहीं रहेगा। भोजन दी निंदा की थी तो फिर भजन भी नहीं कर सकांगे। धन दी अगर निंदा की थी तो फिर धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकांगे। गरीब मनुख है, 3 दिन का भुखा है, उन्होंने कहो वाहिगुरु वाहिगुरु जब, कहता है बाद विच करांगे, पहले रोटी का मसला हल हो गया। बाहर का शरीरक जीवन धन आश्रित है, धन आश्रित है। धन दा लोभ चोर बना देंदा है, धर्म दा लोभ संत बना देंदा है। लोभ नू बदलना है, धन दा लोभ है, इनू जरा बदल दे, इहदी थां बदल ले, धर्म दा लोभ पैदा कर। तुसी आखोगे धर्म दा भी लोभ आउंदा है, आउंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु मैं हुण बड़ा लोभी हां, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। तू मैनू 2 कन दिते ने ते तेरी सिफतो सलाह लखां थावां ते हो रही है। किधरे पाठ हो रहा है, किधरे पूजा हो रही है, किधरे जप हो रहा है, किधरे कथा हो रही है, किधरे कीर्तन हो रहा। हे प्रभु सिर्फ 2 कन तो दिते ने, इक्को जगह मैं सुन सकदा, मैं सारी जगह सुनना चाहना, सब जगह सुनना चाहना। मैनू करोड़ा कन दे। उस लंबे चौड़े शब्द विच गुरु अर्जन देव जी कहंदे 2 ही हथ दिते ने, इक्को ही जगह सेवा कर सकदा, मैनू करोड़ा हथ दे। कोट हस तेरी टहल कमावे, तो मैं तेरी टहल करा, तेरी सेवा करा। वो सिर्फ इक्को ही जबान दिती है, थक जाती है, कंठ भी थक जाता है। मैनू करोड़ा जबाना दे हे प्रभु, ताकि मैं जपदा ही रवां, जपदा ही रवां, जपदा ही रवां। भाई गुरदास भी कहते ने, बड़े लोभी ने मेरे कन, बड़ा लोभ पैदा हो गया। सरवन दरिद्री सुन अमृत बचन प्रे, अचवत सुरत प्यास ना मिटाई है। जिवें धन दा भुखा धन तो नहीं रजदा, धन दा प्यासा मनुख ओदी प्यास नहीं बुझदी। धर्म बारे भी ऐसा है, माधो जल की प्यास ना जाए। हे प्रभु ये तेरे जेड़ा नाम दा जल है, ना रस है पींदा प्यास वधदी है, और प्यास बड़ा लोभिया मैं, प्यास मिटदी नहीं। होर जपण नूं जी करदा है, होर जपण नूं जी करदा है, होर जपण नूं जी करदा है। ऐसे ऐसे मैनू अभ्यासी मिले ने इस जिंदगी दे विच। कहंदे ने ज्ञानी जी रजे ते कोई नहीं, जप जप के करिए, क्यों जिहड़ा कंठ है कंबख्त थक गया, शरीर थक गया, ये घोड़ा थक गया, नहीं चलदा, आपां ते चलना चाहते हैं, और जपना चाहते हैं, और रस लेना चाहते हैं, पर की करिए हुण घोड़ा नहीं चलदा, शरीर नहीं चलदा। धन दा लोभी धन तो नहीं रजदा, सहज कठे लख कोट दावे, तृप्त ना आवे माया पाछे। तृप्ति नहीं आती, रजदा नहीं। इत्थे सिकंदर वर्गे नहीं रजे ते बाकियां ने की रजना है, कोई नहीं रजदा। धन दा लोभ बेईमान बना देंदा है, धर्म दा लोभ मनुख नूं भगवान जैसा बना देंदा है।
इतनी मैं अर्ज कर दें। धन दा लोभ ठग बना देंदा है, चोर बना देंदा है, झूठा बना देंदा है। धर्म दा लोभ सतवादी बना देंदा है, गुणां दा सागर बना देंदा है, ज्ञान दा सागर बना देंदा है। लोभ चंगा है, सिर्फ उहदा टिकाणा बदलना है, बस इन्नी गल। धन दे लोभ विच बहुता जी रहे हैं, बहुत जी के तू देख लिया, हुण धर्म दा लोभ पैदा कर। धर्म दा लोभ शराफत नूं जन्म देवेगा, सच्चाई नूं जन्म देवेगा, ईमानदारी नूं जन्म देवेगा। धन दा लोभ बेईमानी नूं जन्म देवेगा। धन दा लोभी है बेईमान होवेगा, धन दा लोभी है ठग होवेगा। धन दा लोभी है मौका मिलिया ते चोर होवेगा। कल भी इस तरह का वाक आया सी गुरु नानक देव जी महाराज का। सारी दुनिया दे चोरी वध गई, क्योंकि सारी दुनिया का भगवान ते धन है, लक्ष्मी है, नारायण ते है ही नहीं। तो लक्ष्मी ते चोर बना देवेगी, ठग बना देवेगी, बेईमान बना देवेगी। की होया राजनीतिक है, की होया धार्मिक है, की होया आम समाजिक मनुख है, चोरी हर पद्धर ते मौजूद है। धन दा लोभ चोर बना देगा, धन दा लोभ बेईमान बना देगा, धन दा लोभ कठोर बना देगा, ठग बना देगा। धर्म दा लोभ दयालु बना देवेगा, निर्वैर बना देगा, निर्भय बना देवेगा, आत्मदर्शी बना देवेगा, ज्ञान दा सागर बना देगा, गुणा दा सागर बना देगा। हुण मैं अर्ज करा, छल कपट करके धन ते कमाया जा सकता है, छल कपट करके धर्म नहीं कमाया जा सकता। धर्म कमाना है तो पहले बैरूनी रूप विच ये छल कपट सारे सुटने पैंदे, सुटने पैंदे। कहंदे ने ये हुण मिथ है या इतिहास है, ये ते कोई अनुभवी पुरुष जानते होणगे, पर मैं पढ़िया कि शेरनी दा दुध सोने दे भांडे दे टिकदा है, किसी होर भांडे च नहीं, ना लोहे दे भांडे च, ना पित्तल दे, ना तांबे, फट जाता है। ऐसा मैं सुनिया, ऐसा मैं पढ़िया, ऐसा धर्म ग्रंथां दे जिक्र है। शेरनी दा दुध सिर्फ सोने दे भांडे दे च रहिंदा है, पित्तल दे भांडे च नहीं, तांबे दे भांडे दे च नहीं, लोहे दे भांडे दे च नहीं, मिट्टी दे भांडे च भी नहीं। सोने दा भांडा चाहिए तां सही सलामत रहिंदा है। जद मैं इसनूं पढ़िया ते कुछ सोची पिया, मैं क्या अवल ते शेरनी दा दुध कढ़ना ही बड़ा औखा, केड़ा माई का लाल है जड़ा कढ़ेगा। ते फिर चलो कढ़ण दे सफल भी हो गया तो भांडा सोने दा चाहिए, और किसी भांडे च रहिंदा नहीं। अवल ते कढ़ना बड़ा औखा है, ते जे किधरे शेरनी दा दुध इन्हें चो लिया, कढ़ लिया, हुण रखण वास्ते बहुत वड्डा भांडा सोने दा चाहिए, तां रहिंदा है। यकीन जानो, अवल दे जीवन दे प्रभु दे नाम नूं प्रगट करना ही बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। आखण औखा साचा नाम, किसदी हिम्मत है जो करे। ते जे फिर प्रगट हो गया है तो संभालना बड़ा औखा है। मैं ऐसे ऐसे अभ्यासी देखे ने जिन्हां दी जिंदगी च प्रगट ते हो गया, संभाल ना सके। 2-3 सालां दी लगातार एक घटना वुलवरम्पटन दी, उत्थों दे लोकां नूं पता है, इंग्लैंड दा एक शहर वुलवरम्पटन, उत्थे दे स्थान दी भरी हुई कथा अजकल PTC चैनल ते भी दिखा रहे हैं। उत्थे दी घटना है, जिहड़ा कैमरामैन भरन वास्ते गया सी, नीति
ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 16 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਠ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਜਪ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਪ ਕਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਵੀ ਬੀਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਏ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ 10 ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ? ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਫਲੀਭੂਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮਨ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੜੀ ਨਾਸਮਝੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਲੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-9 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਅਦਕੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ, ਸਭ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟੋ, ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੋ, ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
फुआरे दा पानी प्रेशर दा मारा आ उपर उठदा है, जमीन दी खिच दा मारिया फिर थल्ले। सारा दिन उपर उठदा रहिंदा है, सारा दिन थल्ले ही आंदा है। और इतना प्रेशर दिता है उपर उठण नूं तो एकदम उपर जावे, पर जमीन दी कशिश खिचदी है। ऐसा साइंस कहती है, विज्ञान कहता है 400 मील तक कशिश का दायरा है। इस तो अगे जिहड़ी चीज चली जाए कोई, फिर जमीन नहीं खिंचती, कशिश तो बाहर निकल जाती है। ਉਹਦੇ 'ਚ खिचाव नहीं रहिंदा, वजन घट जाता है। जिवें तुसीं देखिया होवेगा चंद्रमा ते पहुंचे होए मनुख चंद्रमा ते तैरदे पए ने, इंज घुमदे पए, जिवें कोई वजन ही नहीं, वेट ही नहीं। जमीन नहीं खिंचदी। हुण ਇਹ ਤੇ विज्ञान की पकड़ दे गालबन 300 साल पहले आ गया। न्यूटन ने कह दिता सी जमीन हर चीज नूं खिंचदी है, हर चीज नूं खिंचदी है। हजारां सालां तो संत जन अवतारी पुरुष कहते रहने, ये मनुख दे ध्यान नूं भी थल्ले खिंचदी है, सुरत नूं भी खिंचदी है। मेरे पदार्थ नूं नहीं खिंचदी, विचार नूं भी खिंचदी है, सिमरती नूं भी खिंचदी है। धन है, संपदा है, जोबन है, सब जमीन का हिस्सा है। जैसे जैसे कोई नाम जपदा है, धन की पकड़, जोबन की पकड़, प्रभुता की पकड़, संसार की प्रगट जैसे जो है पकड़ घटती है, तो फिर जमीन की कशिश खत्म हो जाती है, वह मनुख उपर उठता है। हुण मैं अर्ज करा, ये तो एक घटना देखी, बेशतर बारे मैं सुनिया इस तरह हो जाता, सवेरे अभ्यास करदे उच्चे हो जाते, जमीन की कशिश नहीं रहिंदी, जमीन की पकड़ नहीं रहिंदी। क्यों? ना धन की पकड़, ना जोबन की पकड़, ना पदार्थ की प्रकट, सुरत सिर्फ शब्द दे लीन हो गई तो जमीन खिंचदी नहीं, शरीर ऊपर उठ जाता है। मैं उसनूं आख्या, पुरखा तेरे ते चरण पूजने चाहिए ने, पर तू ते घबरा गया। मैं कहा एक घबराहट तेरे अगों होर भी आ सकती है, ਉਹਦੇ वास्ते मैं तेनों पहले सावधान कर दिया। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाठे कागर, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। पुरातन संस्कारां दा जो अंदर ढांचा है, जिस दिन नाम जपण दे सुरत बहुत बुलंदियां नूं छूंदी है, वो सारे संस्कार मिटदे ने, सड़दे ने, गलदे ने। कि जिस पूर्ण तौर पे वो संस्कार मिटन लगदे ने, तो मनुख नूं इस तरह लगता है जिवें मैनूं मौत आ रही है, मैं ही मिट रहा। उत्थे भी मनुख घबरा जाता है। दरअसल मिटदा जरूर है, उसका पुराना ढांचा मिट जाता है। इस वास्ते वो जिहड़ी अध्यात्मक जिंदगी है, उन्होंने कह दिता गया द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म होया सी मां बाप तो, एक जन्म होया प्रभु दे भजन तो। मां बाप ने सुत पैदा कीता सी, प्रभु दी बंदगी ने संत पैदा कर दिता। सुत मरदा है, संत पैदा होंदा है। पुराने ढांचे की मृत्यु आउंदी है, नवे ढांचे का जन्म होंदा है। मैं कहा उत्थे भी घबराहट आउंदी है, तेरे नाल ऐसा भी होवेगा, क्योंकि जिहड़ी तेरी बिरती है ते जितना तू जप करदा है, यह भी होवेगा। ते हुण घबराई ना, पुराना ढांचा जिस दिन सारा गल गया, मिट गया, तू ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, संत हो जाएगा। अजे भी बहुत अगे है। मैं उन्होंने कहा, मैं ते तेनों सुते सिद्ध किया सी, मैं ते कथा करना, पर तू ते कथा दा रूप हो गया। मैं कथा दे जिहड़ी विचारां नूं दसदा, तू ते उस विचार दा रूप हो गया। इसनूं इकबाल कहंदे ने, तुझे किताब से फरोग नहीं है कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, तू किताब नूं पढ़न वाला है,
किताब दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है, वो तू नहीं है। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वा है, साहिबे किताब नहीं। तू ग्रंथ दे पढ़न वाला है, तू पोथियां नूं पढ़न वाला है, पोथी दे विच जो कुछ है वो तू नहीं है, वो तू नहीं। जिस दिन मनुख वो होण लगदा है, पुराना सारा ढांचा मिटदा है, मैं कहे तीजी घटना भी तेरे नाल घट सकती है, ते फिर घबराई ना। मैं हैरान होया, ऊपर जाके 1 घंटा डंडौते च पिया रहा महाराज दे अगों दोपहर दा वक्त। अजीबो गरीब बिरती दे इस तरह दे अभ्यासी जगह जगह भ्रमण करते मिलते ने। जब परमात्मा दे कशिश दी दायरे चले जाते हैं तो पदार्थां दी कशिश घट जाती है। इतने उच्चे उठ जाते ने, जमीन दी कशिश घट जाती है। जमीन दी कशिश, पदार्थां दी कशिश, जोबन दी कशिश, प्रभता दी कशिश, धन दी कशिश, इस तो उच्चे उठ जाते हैं, कशिश घट जाती है, बुलंदियां नूं छूंदे ने। हुण अखरी अर्थां नूं लईए, सारा खुलासा शब्द दा मैं कर दिता। धन बेईमानी नाल भी कमाया जा सकता है, धर्म नहीं। धन ठगी नाल भी कमाया जा सकता है, धर्म नहीं। धन दा लोभ चोर ते ठग बना देगा, पर धर्म दा लोभ ते संत बना देगा, भगत बना देगा। धन दा लोभ हिरदे नूं मैला करदा जाएगा। महाराज कहने लोभी दा ते भुल के भरोसा कर नहीं ना, लोभी कावे सा ना कीजे जे का पारस, ना भरोसा करो। क्यों? ज्यों को कर हर काया धावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवक सब खाए। लोभी भरा नूं धोखा दे सकता है, प्यो नूं धोखा दे सकता है, पुत्र नूं धोखा दे सकता है, मित्र नूं धोखा दे सकता है, पत्नी नूं धोखा दे सकता है। गुस्ताखी माफ कहण देना, गुरु नूं धोखा दे सकता है, गुरु नूं भी ठगण की कोशिश कर सकता है। सोने की पालकी महाराज ने बनवाई सी, पटने की गल, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, माता जी ने सोना दिता ते जद पालकी बन के आई है पटने साहब की गल, इतिहास की घटना है। सतगुरां ने सेवकां नूं कहा बई लकड़ां कट्ठियां करो, चेता बनाओ तो ऊपर पालकी नूं रखो। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर में अर्ज करा। माता जी भी बड़े रोकन, बड़ी शरदा नाल बना के लैन, असी सोना दिता सी। माता जी कितना क सोना दिता सी? असी 207 तोले दिता सी, तोल के ले गए सन। लेकिन हुण हुक्म महाराज दा नहीं, जलानी है, लकड़ां ते रख दिती। अग दिन भर जल्दी रही, जो बचिया सोना तोलिया ते 7 तोले, गुरु नाल ठगी, धन गुरु गोबिंद सिंह नाल ठगी, 7 तोले। लोभी कावे सा ना कीजे। लोभ भी मित्र नूं ठग सकता है, पुत्र नूं ठग सकता है, प्यो नूं ठग सकता है, भरा नूं ठग सकता है, भैन नूं ठग सकता है, पत्नी नूं धोखा दे सकता है। किधरे दाव पेच उसका लग गया तो गुरु नूं भी नहीं छड्डे, धर्म नूं भी नहीं छड्डे। लोभी, लोभ ने बेईमान बना देना है, धन दे लोभ ने संत बना देना है। तो हुण उस धन नूं अनर्थ नाल, बेईमानी नाल जिहड़ा संग्रह करना है, कबीर रोकदे ने, समझाते ने। उन्हां दा पावन पवित्र वाक आप सरवण करो। छेती छेती मैं आप जी के सामने अखरी अर्थ करा, इत्थे ही जो है फिर अर्थां तो बाद समाप्ति होवेगी। हाँ जी। सोरठ राग दे कबीर जी का यह पावन पवित्र वाक है। ओंकार एक ऐसी धुन है जिस तो ब्रह्मंड की उत्पत्ति हुई है और केवल एक है। एक ओंकार, दूजी तीजी चौथी धुन नहीं है। वो सत स्वरूप है।
उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है, इस वास्ते वो गुरु है। और वो स्वभाव करके प्रसाद है, करुणाकर है, दयालु है, कृपालु है। हाँ जी। बड़े परपंच करके, बड़े छल कपट करके दूजे दा धन खो के लियांदा, ठगी नाल लियांदा, बेईमानी नाल लियांदा, तरह तरह दे छल कपट नाल लियांदा। ये जो तू छल कपट नाल पराया धन लिया है, अपना धन ते दसा नवां दी किरत नाल ही हो सकता है। मैं थोड़े दिनां च करोड़ां पति ते अरबां पति बनना छल कपट तो बिना नहीं, परपंच तो बिना नहीं बन सकता। बहु परपंच कर पर धन लियावे। हाँ जी। पर गजब दी गल है, संसार नूं ते लुट के लियांदा है, पर पुत्रां कोल ते पत्नी कोल फिर उसे धन नूं लुटांदा है, अपने आप नूं लुटांदा है। लो जिन्ना है सारा ले लो, ले लो, हद हो गई। अगलियां दा ते सारा खोंदा है, उत्थे ते लुटना है, इत्थे लुटाना है। लुट के खुशी मिलती है दूजे नूं, लुटा के भी खुशी मिलती है, बशर्ते अपने होवन, पुत्र होवन, मित्र होवन, पत्नी होवे, उत्थे फिर लुटांदा है, सारे खुले ही गफे दे देंदा है, ऐ लो सारा ही लो। सुत दा राह पे आन लुटावे, जगत नूं ते लुटदा है परपंच करके, पर पुत्रां ते पत्नी दे कोल आके अपने आप नूं लुटांदा है, सारा उन्हां दे हवाले करदा है। हाँ जी। हे मेरे भुले हुए मन, एक कपट ते छल ना कर। क्यों? आखिर अंत नो जिन्हां पुत्रां दी खातर, जिन्हां मित्रां दी खातर, जिस पत्नी दी खातर तू दूजियां नूं लुटिया ते इत्थे लुटाया है, ये लेखा केवल तैनूं ही देना पेगा, पत्नी कोल नहीं पूछया जाएगा, पुत्रां कोल नहीं पूछया जाएगा। ये सारा हिसाब किताब तैनूं देना पेगा। मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत ने बेरा तेरे जी पेली। ये तेरे कोल ही अंतिम समय फैसला होएगा, तेरे ते निबड़ेगा, उन्हां ते नहीं। हाँ जी। रोज रोज करके तन ते कमजोर होंदा है, पर लोभ बड़ा बलवान होंदा है। तृष्णा ते रोज रोज जवान होंदी है, वो नहीं बुढ़ी होंदी। लोभ नहीं बुढ़ा होंदा, काम नहीं बुढ़ा होंदा, हंकार नहीं बुढ़ा होंदा, तन बुढ़ा हो जाता है, सिर्फ शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो कबीर कहते ने जरा वेख, रोज रोज तन तेरा छीण हो रहा है, बुढ़ेपा आ रहा है, वो दस्तक दे रहा है। हाँ जी। जिन्हां दे उत्ते तू सब कुछ लुटाया है ते जिन्हां दी खातर सब कुछ तू कीता है, जद बिल्कुल निर्बल कमजोर छीण हो जाएगा, ये तेरी बुक दे च पानी भी पाण वास्ते तैयार नहीं होणगे। पुत्र ते पोतरे ये तेरे नेड़े भी नहीं आउणगे। तब तेरी ओक, इहनूं ओक कहंदे ने, असीं बुक कहंदे आ, ओक। तां फिर तेरी बुक दे च किसी ने पानी दा घुट भी नहीं पाना, किसी ने पूछना भी नहीं, बुढ़ा एवें सिर खांदा, एवें सिर खांदा है। इन्हां दी खातर सब कुछ कीता, हुण सिर खांदा है। किसी ने तेरी जो है बुक दे च पानी नहीं पाना, जिन्हां दी खातर तो सब कुछ करदा है। हाँ जी। एक गल स्पष्ट करके जान, उस अवस्था दे ते अंतिम अवस्था दे कोई तेरा साथी नहीं, कोई तेरा साथी नहीं। हाँ जी। समा आ गया है, वक्त आ गया है, तू सुचेत क्यों नहीं आउंदा? प्रभु दा नाम जप हिरदे दे नाल, ताकि तेरी जिंदगी सफल हो सके। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।